Hello everyone, welcome back once again. In this video, we solve next question of exercise 3.3, that is question number 4. In previous class, we complete question number 1 to 3 and all its parts. Okay. So in this video, here given A transpose and B. Then find value of A plus 2B dash. So first we find A and B. Also you can see B is given and we find here A. How? With the help of A transpose, or you can say A dash, we can write A and then we add. Okay, so first, since given, or you can write given that A dash is equal to -2 1 3 2. So this implies that A dash, or you can write here, this implies that A dash of dash equal to A equal to first row, you can write as a first column, so -2 and 3 1 and 2. यहाँ पर हमें A मिल गया और B यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, एंड B इक्वल टू -1 0 1 2. ये दो हमें दिया गया था. हमने इसकी मदद से हियर वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. वी फाइंड हियर A and now we add A plus 2B. Here we want to find A plus 2B. Now A plus 2B, so you can write A. First we write here -2 1 3 2 plus 2 and B is -1 1 0 2. Here we use scalar multiplication of the matrix, so you can multiply each element of that matrix with 2. So just we write here, yes, -2 1 3 2. Can you see clearly? Yes, plus 2, so -2 2 0 and 4. And now we simplify. -2 plus -2, so you can write here minus of 4. 1 plus 0 1, 3 plus 2 5, 2 plus 4 6. तो ये हो गया A plus 2B. और हमें लिखना क्या है? A plus 2B का कॉम्प्लीमेंट, और you can say transpose, so you can write A plus B. Now A plus 2B equal to this, then A plus 2B dash is equal to first row, you can write as a first column, so -4 1 and 5 6. This is the answer. यही इसका उत्तर हो गया. इतना ही लिखना था. तो कहीं कहीं A देगा, A ट्रांसपोज निकालना पड़ सकता है. कहीं कहीं A ट्रांसपोज देगा तो A निकालना पड़ सकता है. ठीक है, पर तरीका अगर आपको पता है तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. ओके, इफ़ योर कॉन्सेप्ट हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर, सो यू कैन सॉल्व इजली with the help of properties of the matrices. Here how many properties we use? First, here we use transpose property, okay, and then here we use scalar multiplication, and then here we use addition property, okay, and then here also we use transpose, so you can find answer. okay, तो तरीका ऐसे ही होता है. ऐसे ही बार बार आप लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार ज़रूर पूछिए. ठीक है, कमेंट में आप लिख करके पिन करिए उसे.
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने लिखा था ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस में, that is AB transpose, it means multiplication of A and B, and here we want to write AB transpose. So what is the formula? First you can see question number 5. Here we write question number 5. Question number 5. For the matrices A and B, verify that. For the matrices A and B, verify that AB dash is equal to B dash A dash, where A equal to 1 minus 4 3 and B equal to minus 1 2 1. Okay. So this is given A and B, and we want to show second property of the transpose of the matrix. So its solution, अब देखिए कैसे क्या करेंगे आप। पहले ए दिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन आप लिखेंगे कैसे वो भी तो ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। गिवन दैट ए इक्वल टू 1 minus 4 3, then A transpose equal to, we can also write 1 minus 4 and 3. Okay, and B equal to minus 1 to 1, so we can write B dash is equal to minus 1 to 1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या है, वेरीफाई क्या करना है हमें, ए बी डैश। तो ए बी डैश लिखना है हमें, तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी, सो यू कैन राइट ए बी। ए क्या है लिखिए आप यहाँ पर, 1 minus 4 and 3। बी क्या है, -1 2 and 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, आप जानते ही हैं। पहले का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 into -1, सो वी हैव माइनस ऑफ 1। माइनस ऑफ 1 एंड अगेन 2 1, -4, so +4, minus of 8, minus of 4, okay, and 3 -3 6 3। तो ये मिल गया आपको ए बी। ए बी इस तरीके से मिल गया। अब हमें क्या करना है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट यहीं लिख लीजिए आप, ए बी डैश। इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, क्या आएगा, -1 to 1 4 -8 -4। आई होप आपको दिख रहा होगा, -3 6 3। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट एक, बी डैश ए डैश, यस, सो बी डैश ए डैश। बी डैश क्या है, बी डैश हियर -1 to 1। ए डैश क्या है, 1 minus 4 3।
तो आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से -1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, -1, ठीक है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 - 8 6 एंड 1 से 1 - 4 3, तो ये आ गया आपका B डैश A डैश। अब आप देखिए इसको मान लीजिए 2, so you can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write, क्या लिख सकते हैं, AB का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, प्रूव्ड। यही हमें शो करना था, ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब देख लीजिए, कहीं A दे रहा है, हमें A डैश निकालना पड़ रहा है, कहीं पर A डैश दिया है तो A निकालना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी घूम फिर के उपयोग करेंगे और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट थोड़ी आएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, मेथड तो वही रहेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं कोई डाउट छोड़ नहीं रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं लगवा भी रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। तो ये तो था पहला, देखिए इसमें पहला दिया हुआ था ये, यस फर्स्ट। इसी तरीके से इसमें दूसरा भी दिया गया है जो कि A और B की वैल्यू चेंजेस हैं, तो हमें ये पूरा ही हटाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपके लिए जैसे फ़ायदेमंद हो, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़िए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए ज़रूर, और जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं पहले। इसीलिए देखिए एक एक जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे A प्लस B का डैश था, A माइनस B का था, और ये है, तो हर एक पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दिया गया है ताकि उस प्रॉपर्टी को आप सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तो मैं एक एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ, आप अगर इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो आप आगे नेक्स्ट देखिए, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो नहीं लगा पाए होंगे, इसलिए हमें सबको लेके चलना है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए इसमें का, 0 1 2 A इक्वल टू B इक्वल टू 1 5 7। अब हमें ये शो करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको जल्दी में कर दें। आप इसका लिख लीजिए A डैश, क्या आ जाएगा, 0 1 2, और इसका लिख लीजिए यहीं पर B डैश 1 5 7। अब आप इधर निकाल लीजिए AB, A क्या है 0 1 2, B क्या है 1 5 7, क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे नो चेंजिंग, 2 से करेंगे डबल, तो ये आ गया 1। अब इसका लिखना हमें कॉम्प्लीमेंट डैश AB डैश, सो यू कैन राइट 0 0 0 1 5 7 2 10 14।
एक साइड का काम हमने तमाम यहाँ पर कर दिया। दूसरे साइड के लिए आ जाइए। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है? बी डैश ए डैश। बी डैश क्या है? 157। ए डैश क्या है? 012। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर तो आ जाएगा 012, 5 से करिए 0 5 10 0 7 40। इसको मान लीजिए आप 2। 1 और 2 का आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए तो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AB dash is equal to B dash A dash proved। यही हमें करना था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम एक क्वेश्चन और इसमें लगा सकते हैं। देखिए, कोशिश ये भी है कि वीडियो लंबा भी ना हो, आधे घंटे के आसपास हो, ताकि आपको देखने में असुविधा भी ना हो। और हर एक क्वेश्चन भी है, तो आपको जैसे भी टाइम मिले आप वैसे देखिए और इसको लगाइए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए टाइम निर्धारित रहेगा कि इतने से इतने के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, अब एक एक क्वेश्चन लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। ठीक है, और होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जैसे कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट आपको तो बताया ही जाएगा। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन रहेगा तो उसको एक जगह मर्ज करके भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का उपयोग किया गया है। 6 का फर्स्ट है, इफ़ ए इक्वल टू cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस ऑफ sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, then verify that a dash is equal to I। ठीक है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है कि ए डैश ए इक्वल टू आई करना है, कोई बात नहीं। ए डैश ए इक्वल टू आई। सो हाउ यू कैन राइट इट्स सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन इज गिवन दैट ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा cos अल्फा, then its transpose you can write cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें जो शो करना है उस पर चलते हैं। नाउ यहाँ लिखते हैं ए डैश ए डैश की वैल्यू पहले लिख दीजिए आप, cos अल्फ़ा माइनस ऑफ sin अल्फ़ा, मैट्रिक्स फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये एक मैट्रिक्स हो गया।
दूसरा आ जाइए, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कॉस 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 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, पहले का काम हो गया। दूसरे में आ जाइए, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दूसरा आ गया। ठीक है, अब पहले का क्या करना है कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सो यू कैन मल्टीप्लाई लाइक साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और लास्ट में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए, आपको फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का हम उपयोग करेंगे। तो पहले प्लेस पर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, दूसरा प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, तीसरा ये हो गया। अब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सो यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। यही हमें शो करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। फार्मूले देखिए, इसमें और भी फार्मूले होते हैं, जैसे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और एक और होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी होते हैं। एक को उधर ट्रांसफर करिए, नए नए फार्मूले यहीं से जनरेट होते जाएंगे, तो हमने इसमें पहले का उपयोग किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट भी यहीं लगा लेते हैं, फिर आगे क्यों इसके लिए अलग से हम देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताया था ना, सेकंड वीडियो, उसमें ये था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उस पर होगा, तो वो जब होगा तो उस पर करा देंगे आपको। और अगला जो दिया गया है, इसमें बस साइन कॉस का इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया है और वही फिर हमें शो करना है। तो कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र जो किया है करते हैं हम भी ट्रांसफ़र, क्या दिक्कत है। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाता है तो आप आसानी से लगा भी लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लगा पाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, पहले प्लेस पर है साइन कॉस, यस जस्ट उल्टा कर देना है, कोई बात नहीं। भी लिख देते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, पहले प्लेस पे आ गया है साइन, दूसरे पे आ गया है कॉस, फिर माइनस कॉस साइन। ये प्रश्न है, ए दिया गया है, यहीं से आप लिख लीजिए ए डैश क्या है, सीधा लिख दीजिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ऐसे बनता है, आप जानते हैं ये कुछ सिंबल होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल में उपयोग होता है। क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई। ठीक है, ये सब टर्म उपयोग होते हैं, तो हम इसमें अल्फ़ा लिख रहे हैं, अल्फ़ा जो दिया गया है। ठीक है, चलिए ये तो वैसे ही था, आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड उसका ले लीजिए, ए डैश ए, सो हियर वी राइट ए डैश साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दूसरा है ए, तो लिखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा
माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आप देखिए साइन अल्फा का साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो हियर वी राइट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos square alpha and use property, yes, sin square alpha plus cos square alpha, and at second place you can write sin alpha cos alpha minus of, ये ज़ीरो ही आएंगे, ये भी ज़ीरो आएगा। सो यू कैन राइट जस्ट माइनस cos sin cos, and last cos square alpha plus of, यही तो है। पहला 1 हो गया, दूसरा 0 0 1, ये आई। दिस इम्प्लाइज दैट, यही तो शो करना था हमें, प्रूव्ड। इसी को तो प्रूफ करके हमें दिखाना था, इसी को हमें शो करना था, हमने शो कर दिया, ठीक है। इसी को हमें सिद्ध करना था कि इतना इक्वल टू इतना होता है। तो इस वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, 4 5 एंड 6। इसके पहले वाले में भी 3 क्वेश्चन हमने किया था, 1 2 3। ओके, सो here we end this video, and now in the next video we will solve question number 7 and next question. So I hope every concept related to transpose and its properties are clear. With the help of these properties and concept, here we solve question number 1 to 6 only at one property, that is transpose matrix and its property. Now in the next video we use second, that is symmetric matrix and skew symmetric matrix. And you know that symmetric matrix and skew symmetric matrix based on the concept of transpose of the matrix. तो अगले वीडियो में नया हम उपयोग तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसका भी उपयोग होगा। ओके, सो आई होप everything is clear, and if you have any doubt or if you feel any difficulty to solve the question, so you can comment in comment box, and I am also here available to provide every doubt solution, okay, and every solution of question. So you can watch, keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.